Hello everybody, welcome to Lossico's Daily News Analysis. Today is 2nd July 2020. Before discussing the topics that we'll be covering today, there was a question asked in yesterday's videos and I would like to tell the answer for that question. So the question was that the Indian government recently banned 59 apps and under what section such apps were banned. So the answer to the question was Section 69A of Information Technology Act. Section 69A, I repeat. Okay. Now coming back to the topics that we'll be discussing today. The first article rather, is how not to tame the digital dragon. Again, this is about the topic that we covered in yesterday's videos also, but because it's a bigger and broader issue, हम इसे आज भी discuss करेंगे. Now the second topic is Ayurveda. The article is titled Ayurveda Deserves Better. This talks about Ayurveda in general and अभी recently एक issue आया था Ayurveda के ऊपर how a particular company and organization claimed कि उन्होंने Ayurveda के through COVID-19 की medicine निकाल दी है and that claim turned out to be not well verified. So we will discuss about Ayurveda here. The last article for today is it's called It Shouldn't Take a Pandemic. Now, this article is again about our healthcare system and the efficiency of our healthcare system in dealing with COVID-19. Specifically, it talks about a particular judgment of the Supreme Court and a concept called a Central Bed Bureau. We will discuss this when we come to this article. Now, coming to our first topic for today, that is the government's recent ban. So, कल के वीडियो में हमने इसको anyway कवर किया था, but again to revise the whole issue. So what happened was that हमारी जो ministry है, it's called Ministry of Electronics and Information Technology. उन्होंने एक order pass किया, but basically this came out through a press release. उसमें press release में ये लिखा हुआ है that the government directs ban on 59 smartphone apps. Now these are the 59 apps that were banned. It includes this app called TikTok, जो बहुत ही popular social media app है. Then there's this application called Share It. Again, this is a utility app जिसमें आप documents download कर सकते थे, scan कर सकते थे. काफी लोग, large portion of population of our Indian population used to use this app. Then there's this app called UC Browser. This application called UC Browser. UC browser usually जो low budget smartphones थे उनके अंदर एक web browser के form में बहुत ही widely use किया जाता था. तो काफी सारे apps हैं, 59 apps है, and a lot of them are, in fact all of them are were of a big utility to a lot of people. Now this has happened. What this particular article does is कि ये critically analyze करता है government के this decision को. अब आप एनालिसिस बहुत तरीके से कर सकते हैं. यू कैन डू एन इकोनॉमिक एनालिसिस, यू कैन डू कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इफेक्ट होगा, उस इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में एनालिसिस कर सकते हैं. दिस आर्टिकल कंटेन्स अ लीगल एनालिसिस ऑफ दिस डिसीजन एंड व्हाट द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन विल बी ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ इंडिया. तो मेनली ऑथर ने इस लीगैलिटी के ऊपर एनालिसिस करने को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. जो पहली बात तो वो बोलते हैं, एक्चुअली बिफोर कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू डू दिस क्रिटिकल एनालिसिस एंड लीगल एनालिसिस इज कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन लेती है, अग्रीड दैट इट इज नेसेसरी कि हम समझे कि ये इस पॉलिसी डिसीजन के बिहाइंड मोटिव क्या है गवर्नमेंट का. इस तो ये जो है हमारा डिसीजन, इसमें कहा जा रहा है एंड पीपल अग्री because there's a tension going on between India and China on the borders, therefore Chinese apps हैं जो ban कर दिए गए. Now इस बारे में तो हमने एक positive aspect तो समझ लिया है इस decision का. Now when a particular policy decision is taken, it is also important to understand, to look at it from a critical point of view कि क्या उस decision के नुकसान हो सकते हैं. कि लीगैलिटी वाले साइड में ऑथर ने यही करने की कोशिश करी है, तो क्रिटिकल वे में एनालाइज किया है. तो जो दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं इज फर्स्ट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो ऑथर बोलते हैं कि ये पूरा जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट का, दिस हैज कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेस रिलीज. कि हर किसी के पास जो जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिली वो प्रेस रिलीज के फॉर्म में थी, इंस्टेड ऑफ अ गवर्नमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर.
तो इस प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ था कि MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिकमेंड किया था that these particular apps should be banned. Now this MHA has recommended, but जनरल पब्लिक को MHA की रिकमेंडेशन भी नहीं मिली है, यानी कि उसका डिस्क्लोजर नहीं किया गया है जनरल पब्लिक के सामने. नाउ इवन दिस डिसीजन ये एक लीगल ऑर्डर के फॉर्म में सामने नहीं आया है, तो दो तरह के डिस्क्लोजर है जो पब्लिक के सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से ऑथर बोल रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू है, बिकॉज पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट की साइड से ऑर्डर है वो हमें नहीं मिला है, हमें बस एक प्रेस रिलीज मिली है which is not technically a very official document to take such a big decision. Now why is disclosure important? Because आजकल जो डिसीजन हो रहे हैं, we know that our parliament is not in session. So usually what happens is इस तरह के किसी भी तरह के डिसीजन जो होते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू पास होके किए जाते हैं. But now that there's no parliament sitting happening and there's no debate in the parliament about these discussions, disclosure becomes even more important because public को right है to information about why such decisions have taken place. तो usually तो हमारे representatives parliament में बैठे होता जो discussion कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन अब वो भी नहीं बैठे हैं, so public has the right to have a information about it. But these disclosures have not been made, and therefore there is an issue of transparency. Now, author also refers to the decision made in Shreya Singhal case, जो कि केस था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 66A IT एक्ट के बारे में. ये बहुत ही लैंडमार्क केस है. एंड द डिसीजन ऑफ अनुराधा भासिन जजमेंट जो अभी आया है, रिसेंट ही डिसीजन है, जो जम्मू कश्मीर में प्रेस पे बैन हुआ था उसके बारे में है. ये दोनों डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट है, इनमें डिस्क्लोजर की ही बात की गई है. इसमें कहा गया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई बड़ा ऑर्डर देती है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट आता है, उस केस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट्स डिसीजन इज मेड. फॉर एग्जांपल अनुराधा भासिन का जो जजमेंट था जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स बैन ऑन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू कश्मीर में, उस पर क्वेश्चन रेज किया गया था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा डिसीजन ले भी रही है जिससे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पे एक किसी तरह का बैन लग रहा है, तो गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर एक पब्लिक फोरम में, पब्लिक डिस्क्लोजर में लाना पड़ेगा. सिमिलरली अगर इस टाइप के भी कोई ऑर्डर लिए गए हैं तो उनको पब्लिक डिस्क्लोजर में लाना चाहिए, रादर मेकिंग सच ऑर्डर ओनली थ्रू अ प्रेस रिलीज. ये एक लीगैलिटी के ऊपर इशू है जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से रिलेट करता है. And this is the whole issue this is the first issue that the author talks about here. Now the second issue that author raises is that ये decision section 69A of IT Act के अंदर लिया गया है, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था. Now 69A of IT Act बताता है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है इस तरह के कोई डिसीजन लेने का, ये एक रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, वेबसाइट ब्लॉकिंग रूल 2009, उसके अंदर इसका प्रोसीजर दिया हुआ है. नाउ दिस प्रोसीजर सेज दैट इस तरह के कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्री डिसीजन हियरिंग होनी चाहिए. उस हियरिंग के बाद उस हियरिंग से पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा डिफेंडेंट को. ये सारे लोग जो हैं इसमें डिफेंडेंट होते हैं, उन्हें एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा. उनकी अगर कोई ग्रीवेंस है इस डिसीजन से रिलेटेड तो वो उस हियरिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे और उसके बाद ही इस तरह का कोई डिसीजन लिया जाएगा. लेकिन ये जो बैन पूरा लगाया गया है, दिस वाज इम्पोज्ड विदाउट एनी प्री डिसीजनल हियरिंग्स, एंड देयरफॉर ये जो पूरा प्रोसीजर है ये फॉलो नहीं किया गया 69A के अंदर. एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई दिस डिसीजन कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स लीगैलिटी. एंड दीज आर द टू इश्यूज दैट ऑथर रेजेस. क्योंकि लीगल इश्यूज रेज हो रहे हैं इस डिसीजन में, देयरफॉर वी नीड टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड द वायबिलिटी ऑफ दिस डिसीजन, क्योंकि लीगैलिटी के टर्म्स में probably this decision is not very well made. Coming to the second article for today, this article talks about the recent incident जहाँ पे जो हमारी पतंजलि ब्रांड है, हमारा पतंजलि बहुत ही फेमस ब्रांड है, इन्होंने क्लेम किया था कि they have released a medicine called Coronil, and they claim that this Coronil has the potential to treat COVID-19, the patients of COVID.
नाउ जैसे ये डिसीजन आया था काफी हड़कंप सा मच गया था बिकॉज एवरीबडी वाज लाइक वाओ क्योर फाइनली हैज कम आउट। हाउएवर इसके बाद में इसके साइंटिफिक और रेगुलेटरी टेस्ट हुए, देखा गया कि वेदर द क्लेम दैट हैज बीन मेड ये एक्चुअली में ट्रू है कि नहीं। और ये टेस्ट होने के बाद पता चला दैट एक्चुअली में देयर इज नो प्रूफ टू व्हाट वाज क्लेम्ड, यानी कि क्लेम सही नहीं बनाया गया था। इस कोरोनिल जो मेडिसिन थी उसके बारे में क्लेम सही नहीं था। नाउ इस पूरे इंसिडेंट की वजह से ऑथर जो है यहाँ पे वो बोलते हैं कि आयुर्वेदा की इमेज पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है इन टर्म्स की। ऐसा बोला जाता है, पब्लिक परसेप्शन जनरली ये होता है दैट आयुर्वेदा इज नॉट अ साइंटिफिक वेरी साइंटिफिक form of medicine, the medical treatment, and Ayurveda is not a very evidence based and scientific form of study, एंड देयरफॉर इसे ज्यादा मेन स्ट्रीम हमारे मेडिकल स्टडीज में यूज भी नहीं किया जाता है। फर्दर इस इंसिडेंट से यही बात दोबारा प्रूव हो गई। लेकिन ऑथर ट्राई करते हैं इस आर्टिकल में ये बताने का कि ऐसा नहीं है, रादर आयुर्वेदा एक बहुत ही सिस्टमैटिकली वे में ग्रो करता हुआ प्रोसीजर है। और हिस्ट्री से लेके एंशियंट टाइम से लेकर आज तक द रिसर्च दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन आयुर्वेदा, अगर उसको ठीक तरह से यूज किया जाए then it might become very useful way of using our medicinal system in India as well as everywhere. तो बोलते हैं that it has Ayurveda has existed since a very long time and बहुत ही पुराने टाइम से इंडियन ट्रेडिशन में तो बहुत ही पहले से एग्जिस्ट करता गया है। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा डिफरेंट टेक्स्ट से लेकर उन्होंने नॉलेज ऐड करी आयुर्वेदिक टेक्स्ट में एंड डिफरेंट जो प्रैक्टिस होती हैं अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेदा और आयुर्वेदा के सब ग्रुप भी जो होते हैं जैसे कि यूनानी, सिद्धा, इन्होंने नॉलेज एक्सचेंज किया और उस तरह से और आयुर्वेदा का जो सिस्टम था वो स्ट्रेंथन हो गया। देन कॉलोनियल जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस टाइम पे समथिंग कॉल्ड बायोमेडिसिन केम अप, जो भी एक वो भी ये जो बायोमेडिसिन का सिस्टम है ये भी आयुर्वेदा का ही एक सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलेशन था। Then he talks about this person called Ashok Vedya. So Ashok Vedya Ayurveda studies के बहुत ही बड़े जानकार हैं। He is very well known in the area of Ayurveda. Now he says that there are knowledgeable people like Ashok Vedya who do consistent study on this area and modern scientific research ऐसे लोगों की वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर चलती आ रही है and which is why the system keeps developing. एंशियंट टाइम से आज तक उस पर रिसर्च चलती आ रही है और वो कंसिस्टेंटली डेवलप होता हुआ सिस्टम है आयुर्वेदा। और इवन आज तक डॉक्टर्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स आर नाउ स्टिल रिसर्चिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड इट इज स्टिल इम्प्रूविंग, एवर इम्प्रूविंग। एंड अगर हम उसके आई मीन देयर आर मेजर कंपनीज लाइक पतंजलि एंड डाबर, इस तरह की जो मेजर कंपनीज है वो तो है ही, लेकिन उन्होंने आयुर्वेदा के सिस्टम को काफी कमर्शियलाइज कर दिया है। लेकिन जनरल पब्लिक के परसेप्शन में यही मेजर कंपनीज है जो अगर हम आयुर्वेदा के बारे में सोचते हैं तो हम इन्हीं मेजर कंपनीज के बारे में पर हमारा दिमाग जाता है। लेकिन देयर आर अदर स्मॉल प्रैक्टिशनर्स जो बहुत ही जेन्युइन वे में आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं और उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड द आयुर्वेदिक सिस्टम प्रॉपर्ली। नाउ अगेन द ऑथर सेज कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आयुर्वेदा जो है काफी नोन किया जाता है। It's known for in manufacturing sector and as I said before mainly because of the large companies that are existing in manufacturing sector जैसे कि पतंजलि, डाबर, हिमालय, इस टाइप की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आयुर्वेदा के सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं वो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी प्रेवलेंट है इसलिए हमारे दिमाग में when we think of Ayurveda these are the terms that come up. Rather, we instead of just thinking about these major manufacturing companies, we need to look broadly towards Ayurveda and what all exists under its broad ambit. और ये सारे इस सिस्टम को पूरी तरह से समझने के बाद ही हमें पता चलेगा how useful Ayurveda can be for everybody. Third article for today is about something called Central Bed Bureau. Now, before coming to Central Bed Bureau, let's understand this whole issue. So, we all know everybody is suffering from COVID-19. January 30th था जब इंडिया में कोविड का पहला केस आया था। उसी टाइम पे इंटरनेशनली इसके कोविड को एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था।
नाउ एज द इशू अरोज, गवर्नमेंट ने हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इन्वोक किया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इन्वोक किया। इन एक्ट्स को इन्वोक करने के बाद काफी सारे स्टेप्स लिए गए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने हमें जनरल पब्लिक को ये डिक्लेरेशन दी that they have sufficient beds, they have sufficient testing facilities, they have given sufficient training to its doctors, और गवर्नमेंट के पास बेसिकली ये बोला गया कि उनके पास फैसिलिटीज है डील करने के लिए सिचुएशन। ना ऐसा बोल दिया गया गवर्नमेंट की साइड से, लेकिन काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं बीच में जिससे हम इस बात को क्वेश्चन कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें ये तो सोचना ही चाहिए कि बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स छोटे छोटे फॉल्ट सामने आए हैं जिनको एनालाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इस आर्टिकल में एक मेजर केस के बारे में डिस्कशन किया गया है विच इज अबाउट अ प्रेग्नेंट वुमेन। ये इनका नाम था नीलम, जो 8 months प्रेग्नेंट थी। नोएडा में इंसिडेंट हुआ था। तो नीलम wanted to go to a hospital and multiple hospitals थे, at least 4-5 hospitals थे, उनको रिजेक्शन मिला। तो she went to one hospital, उन्होंने उन्हें कहा कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, दूसरे में गई, तीसरे में गई, and ultimately she died on her way to looking for these hospitals। तो इससे एक बहुत ही बड़ा इशू सामने आया कि बोल तो दिया गया है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो बेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफी अनइवन है। फॉर एग्जाम्पल, टोटली इंडिया में ऐसा बोला गया कि काफी सारे बेड्स हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बेड के जो कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में कम हो। फॉर एग्जाम्पल, नीलम को नोएडा में बेड्स की जरूरत थी। अब ये हो सकता है कि जितने बेड्स अवेलेबल कराए गए उनका कंसंट्रेशन दिल्ली में ज्यादा हो, नोएडा में कम हो, किसी एक पर्टिकुलर नोएडा के किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हो, दूसरे एरिया में कम हो। तो ऐसे में अगर ये कंफ्यूजन प्रिवेल करेगा तो पेशेंट के लिए ये बात बहुत डिफिकल्ट होगी टू फाइंड आउट कि उसे किस एरिया में जाना चाहिए, कहाँ पे जाने पर उसे बेड मिलेंगे। So this is the type of confusion that has come up in these times. So author says that there is no coordination, cooperation and collaboration among hospitals in the geographical region. Hospitals को भी नहीं पता है कि कहाँ पे जाने पे vacant beds मिलेंगे। For example, नोएडा के जब एक पहले हॉस्पिटल ने रिजेक्ट किया, वो हॉस्पिटल इंस्टेड बता सकता था नीलम को कि आपको इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे आपको बेड मिलेंगे, बट दे जस्ट रिफ्यूज्ड ऑन हर फेस कि उनके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, और उन्हें नीलम को ये नहीं बताया गया कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, which was the main problem, that there is no coordination, cooperation and collaboration, and it's burdensome for the patient to locate hospitals with vacant beds. तो पेशेंट को तो अपने आप पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे बेड्स है, और इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि बेड होते हुए भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें ये नहीं पता है कि बेड्स एक्चुअली में है कहाँ। तो इसके बाद जो ऑथर है वो इस केस की बात करते हैं। दिस केस इज कॉल्ड पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 1996 का केस है ये, सुप्रीम कोर्ट में। एसेंशियली इस केस में ये बात की गई थी दैट डिनायल ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो अगर किसी पेशेंट को कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की नीड है और अगर कोई हॉस्पिटल मना कर देता है कि नहीं, हम आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो फिर वो उसके आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है उसका डिनायल होगा। Now this is again article 21 is a very broad article, as you all must know, and this is one of the sub point that इस केस में आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर डिनायल ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी आर्टिकल राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किया गया था। This case also said that if a patient is too sick to be transferred, he or she is to be kept on a trolley or even on the floor till he she can be accommodated। यानी कि अगर वो ज्यादा सिक है तो उसे हॉस्पिटल में ही रोका जाएगा और अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि उसे एक बेड दिया जाए। तो इसी केस में एक सेंट्रल बेड ब्यूरो को सेटअप करने की बात की गई थी। अभी सेंट्रल बेड ब्यूरो है क्या? सेंट्रल बेड ब्यूरो बेसिकली बात करता है कि एक बेसिकली एक डेटा शीट बनाई जाएगी बेड्स की, कि कितने कितने बेड्स कौन कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसका मेन पर्पस अगेन यही होगा कि इमरजेंसी अगर ट्रीटमेंट किसी को चाहिए तो वहां पे हमें पता चल जाए कि कौन से हॉस्पिटल में कोई एक पर्टिकुलर बेड खाली है, जिससे इमरजेंसी के टाइम पे बेड्स की शॉर्टेज ना हो। अगेन ये रिकमेंडेशन दी गई थी इस केस में कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन 1996 का ये केस है और अभी तक ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इसीलिए इस आर्टिकल का टाइटल दिया गया है कि इट शुडंट टेक अ पैंडेमिक, यानी कि हमें एक पैंडेमिक के आने तक का वेट नहीं करना चाहिए इस टाइप की जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि अगर ये रिकमेंडेशन यानी कि एक सेंट्रल बेड ब्यूरो
टाइप की कोई एक फैसिलिटी पहले बना दी गई होती तो कुछ काफी लोगों की जान बच जाती, जैसे कि नीलम की जान बच जाती। So this was all for today. The quiz question is पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये किस चीज को कंसर्न करता है? So the options are right to privacy of an individual, right of emergency medical treatment, right to sleep, or none of the above. The answer to this question will be discussed in the next video. Thank you.